It was all a fraud. I'm done. मतलब जितनी possible cheating मेरे साथ हो सकती थी वो हो गई है. नमस्ते करूँगी उनको कि thank you for such a bad and such a pathetic experience. I just wanted to cut off all ties with them. Some other things were waiting for me and I was like यहाँ से fraud शुरू हुआ. I was taken aback. Like आप इतना झूठ मेरे मुंह पे बोल रहे हो. Basically renovate the entire flat. Everything on that list is fraud. He was very rude when he talked to me on the phone. Like I have been bearing all this nonsense. I am a lawyer by profession, so I know कि मैं sign ऐसे तो नहीं करूँगी. Everything of this is fraud and this is like a joke to me. नए tenant की बड़ी चिंता हो रही है. So there's like a litigation that you enter into outside court settlement. Like I did not know कि ऐसा भी कोई document होता है. I filed the case and I was like, okay, I'll wait for a good amount of time. One day, I got a mail saying. वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल. सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ मेरा एक्सपीरियंस ऑफ हाउ आई वॉज चीटेड एंड ड्यूप्ड इन लंडन. सो बेसिकली आई एम मेड एक और वीडियो relating to this topic only. So basically in that video I told कि मेरे साथ क्या cheating and क्या fraud हुई थी when I was looking for accommodations and जब मैंने accommodation book करी थी. So basically I went to London for my masters and before going to London of course I had to book an accommodation. I needed a place to live. So basically I booked my accommodation through like first I booked it through an agent and वो agent बाद में fraud निकला. So you know I somehow managed and retrieved my money उस case में. Secondly I booked an accommodation through a very reliable site, a very good agency and all of that. And then जब मैं उस accommodation में actually move in करी, I realized it was all a fraud. And जो मुझे accommodation दिखाई गई थी वो निकली ही नहीं. Everything was in such a bad condition. The mattresses were broken, the lights weren't working, the toilet seat was broken. Kitchen में जो like proper जो kitchen की setting थी वो इतनी off थी. Everything was, there was no storage, so everything was so off the place. And the rent was too much. But of course I had signed the rent agreement. मैंने डिपॉजिट भी पे कर दिया था. मैंने अपना फर्स्ट फ्यू वीक्स का रेंट भी पे कर दिया था. फर्स्ट फ्यू मंथ्स का रेंट पे कर दिया था. आई पेड माई रेंट फॉर 6 months. सो आई कुड नॉट बैक आउट. प्लस आई हैड नो अदर ऑप्शन. मतलब उस टाइम पे मैं नई अकोमोडेशन ढूंढने निकल नहीं सकती थी. आई हैड टू स्टार्ट यूनिवर्सिटी एंड ऑल ऑफ दैट. सो आई स्पेंड गुड 1.5 year उस अकोमोडेशन में. आई मैनेज्ड आउट थिंग्स. आई हैड टू डू इट. आई हैड नो अदर ऑप्शन. बट वंस आई वॉज डन विद स्टेइंग इन दैट अकोमोडेशन मेरा रेंट एग्रीमेंट भी खत्म हो गया एंड आई मूव्ड बैक टू India. I was like finally I am done. मतलब जितनी possible cheating मेरे साथ हो सकती थी वो हो गई है and everything is sorted. So I was like okay now I just have to take back my deposit का पैसा and I'll be done. You know I will have then no contact with other agency, with the landlady and all of that. And मैं नमस्ते करूँगी उनको कि thank you for such a bad and such a pathetic experience. Like I just wanted to cut off all ties with them. But ऐसा नहीं हुआ. Some other things were waiting for me and I was like मतलब आई वॉज लाइक ओ माई गॉड अभी मतलब और क्या रह गया है. एंड और ये रह गया था दैट वंस आई केम बैक टू इंडिया आई आस्क्ड देम फॉर माई डिपॉजिट मनी. सो बेसिकली डिपॉजिट मनी वो मनी होता है जो आप पे करते हो व्हेन यू आर लॉकिंग इन अ प्रॉपर्टी. सो बेसिकली कोई भी जो लैंडलॉर्ड होते हैं या कोई भी लैंडलेडी होती है या एनी यू नो लेटिंग एजेंसी दे आस्क आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करने के लिए विच इज़ लाइक अ डिपॉजिट. सो बेसिकली वो डिपॉजिट आपको इसलिए पे करना पड़ता है दैट इन केस यू नो डू एनी हार्म टू द प्रॉपर्टी. आपसे कोई चीज़ टूट जाती है या अगर आप कोई प्रॉपर्टी को नुकसान करते हो या एनीथिंग विच इज़ ऑफ सो यू नो दे कैन डिडक्ट मनी फ्रॉम दैट डिपॉजिट एंड वो रिपेयर वर्क करवा सके. एंड देन दे गिव यू जो भी डिपॉजिट बचता है दे गिव दैट बैक टू यू. ऑफ कोर्स दे टेक योर कंसेंट एंड ऑल ऑफ दैट इज अ सेपरेट थिंग. सो वंस आई केम बैक टू इंडिया आई वॉज लाइक okay now I am done staying in that pathetic property. मेरा हो गया है सब कुछ हो गया है and now I am back. So now the only thing that was left was to take back my deposit because that was my right. I had done nothing to the property. मतलब मैं अपनी तरफ से कोई नुकसान वगैरह करके नहीं आई थी उस प्रॉपर्टी को. मतलब उस प्रॉपर्टी में कुछ था ही नहीं कि उसके साथ नुकसान किया जाए. इट वॉज ऑलरेडी इन सच अ बैड कंडीशन एंड ऑल ऑफ दैट. बट चलो दैट इज अनदर थिंग. सो I came back to India and I just I waited for some time of course because I was like अभी rent agreement खत्म हुआ है. Of course they will you know send in their agents and
वो एक बार इंस्पेक्शन करेंगे पूरे अपार्टमेंट का, पूरे फ्लैट का, टू सी कि अगर उनको लग रहा है कि मैंने कोई डैमेज तो नहीं करा है ऑन दैट, एंड देन दे विल गिव मी द डिपॉजिट. दे कैन डिडक्ट वट एवर फ्यू जितने भी वो पाउंड्स वगैरह डिडक्ट करेंगे थोड़े बहुत, एंड देन लाइक आई विल गेट बैक अ मेजर चंक ऑफ माई डिपॉजिट इज वट आई वॉज एक्सपेक्टिंग. सो what I thought was that okay, I'll wait for some time. I did wait for some time. I waited for good, I think 20-25 days I waited, and I was like there's no response. Like वो मुझे कुछ बता ही नहीं रहे हैं कि मेरा डिपॉजिट कब देंगे, क्या है, उन्होंने इंस्पेक्शन कर ली है नहीं करी, and all of that. And I was like I should write a mail. So I wrote a mail to the agency, to the landlady. मतलब मैंने एक combined mail ही लिखी सबको, in which I said that I am done with the property. मेरा rent agreement खत्म हो गया है, now I am waiting for my deposit. I please give me my deposit. And they were like of course we'll give you the deposit, but we we are waiting for the inventory report, like a check, a third party check. I did not quite understand it ki what is like a third party check, because I wasn't aware of the situation, and I was like okay, मतलब मुझे ये समझ आया that they will inspect the property in a very proper way, अभी वो कर नहीं पा रहे हैं, so that is the sole reason कि मेरा deposit उन्होंने hold किया. I was like okay, I'll wait for it. Another month passed by, I did not get any response from them, and I was like this is now too much, like almost 2 महीने हो गए, and I am back to my country. I am waiting for my deposit, and that deposit is no joke. Like I had paid like a good amount of money, and I was like I really need my deposit back, and is there any other way that I can maybe escalate the process or whatever. And they were like that the property is not in the condition that we expected it to be, and we'll be cutting out इतना आपका पैसा. And this is like they sent me like a detailed list of things. Now in the detailed list what they had mentioned, यहाँ से fraud शुरू हुआ. In the detailed list I thought that they will be giving me some reasonable points. मतलब obviously if you are living in a property थोड़ा बहुत damage हो ही जाता है, like maybe some wall is chipped, या maybe some कुछ crack आ गया इधर उधर, या कुछ तो वो हो ही जाता है. मतलब that is because if you are like living in a property तो थोड़ा बहुत ह्यूमन एरर होता है, थोड़ी बहुत आप गलतियां करते हो जिस वजह से थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी को नुकसान हो जाता है. दैट इज ह्यूमन, दैट इज अंडरस्टैंडेबल. आई वॉज रेडी फॉर इट. बट जो लिस्ट मेरे सामने आई चीज़ों की विच दे वर सेइंग कि आपने ख़राब करी एंड वील बी कटिंग दैट मनी फ्रॉम द डिपॉजिट, आई वॉज टेकन बैक लुकिंग एट दैट लिस्ट. आई वॉज लाइक व्हाट इज रॉन्ग विद देम. लाइक इन्होंने मेरे साथ फ्रॉड करा. मतलब उन्होंने मुझे प्रॉपर्टी कुछ दिखाई थी, वो निकली कुछ और. दे टुक द मनी फ्रॉम मी. नोबडी एवर शोड अप. जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी इन द प्रॉपर्टी, नोबडी एवर केम टू माई रेस्क्यू. लाइक दे लिटरली जस्ट टर्न देयर बैक्स एट मी एंड एवरीथिंग. एंड आई वाज लाइक now they have the audacity to send me a list of all the झूठी चीज़ें बनाई हुई and asking कि हम because ये है तो हम आपका डिपॉजिट का पैसा कट करेंगे and we'll give you just this much, which was like a very meager amount. मतलब मोस्टली डिपॉजिट का पैसा तो वो ले ही रहे थे. So जो लिस्ट थी, I just sat down one day, I opened the list, मतलब मेल पे उन्होंने लिस्ट भेजी थी, and I started inspecting everything कि उन्होंने क्या क्या बोला है अपनी तरफ से. अब लिस्ट में क्या क्या था? The first thing was that the mattresses are not in a very good condition. So once the day, to be very honest, the day I entered the property, of course, I used the beds and all of that. The mattresses were broken from day one. I had proofs. Proofs कैसे थे कि मैंने जिस दिन, luckily, I think बाय गॉड्स ग्रेस मेरा उस टाइम पे दिमाग चला था एंड मैंने सारी चीज़ें जो मुझे ख़राब लग रही थी इनिशियली 1 week ऑफ माई स्टे इन दैट प्रॉपर्टी, आई हैड इन्फॉर्म्ड एवरीथिंग टू द एजेंसी ऑन देयर व्हाट्सएप. मेल पे लैंडलेडी को मैंने व्हाट्सएप किया हुआ था, लैंडलेडी को भी मैंने मेल पे सब अटैच करके भेजा हुआ था. सो आई जस्ट ओपन्ड दोज चैट्स इन विच जो बहुत इनिशियल डेज की थी व्हेन आई हैड जस्ट मूव्ड इनटू द प्रॉपर्टी, जिसमें मैंने बोला हुआ था दैट द मैट्रेसेस आर ब्रोकन, दे आर नॉट इन द राइट कंडीशन. एंड उस टाइम पे मुझे ये बोला गया था दैट no, now we can't do anything about it, you have to buy a new mattress for yourself. And I was like, उस टाइम पे I had no option. I did buy a new mattress for myself. मैंने I had all those bills and everything with me. I attached screenshots of उस डेट में जो वो इनिशियल डेट पे जब मैंने भेजा था कि mattresses are broken, and I was like I have the proof कि मैंने आपको इनिशियली बोला था. Now I am not paying for the new mattresses. Of course I am not, because आप अपना एक तरीके से पूरा घर नया सेटअप करना चाहते हो on my deposit money, and I am understanding that जो आपको मेरे साथ ट्रिक्स खेल रहे हो. So I was like
the mattresses were broken from day one. I had informed the landlady, to the agency, to my consultant, everyone about that. And you guys know about that. Here are the screenshots and all of that. Then they sent me, the next point was that the toilet seat is broken. Again, I sent them a screenshot saying that first week of my moving into the property, I told you that it is broken and you told me it is your responsibility to get it repaired. So it is the onus is completely on you. जो चीज़ें पहले से ही टूटी हुई थी वो आपने मुझ पे डाल दी हैं, saying that आपने वो तोड़ी हैं. And then they told me that the bulbs are not working and all of that, and I was like, almost every other bulb of the property I had to replace once I entered the property. वो भी चीज़ मैंने आपको बोली थी. Once I entered the property and you were like, no, the bulbs were working once we saw them and अब वो नहीं चल रहे. And I was like, मैं घुसी हूँ property में और bulb नहीं चल रहा तो क्या हुआ है? Like of course something is wrong, right? Like आप इतना झूठ मेरे मुंह पे बोल रहे हो. And of course I had to change the bulbs and all of that because of course मैं अंधेरे में नहीं रह सकती थी. I did everything. So ऐसे ऐसे पॉइंट्स उस लिस्ट में मेंशन थे जिससे मुझे समझ आ गया दैट व्हाट शी इज ट्राइंग टू डू इज दैट शी द लैंडलेडी द एजेंसी इज ट्राइंग टू बेसिकली रेनोवेट द एंटायर फ्लैट मेरे डिपॉजिट मनी पे, बिकॉज दे नो दैट आई एम अ स्टूडेंट, आई माइट नॉट बी एबल टू फाइट बैक एंड आई विल बी लाइक ओके ठीक है आप मेरा पैसा ले लो बट जस्ट गिव मी सम मनी बैक एट लीस्ट. या उनको मे बी लगा था दैट आई विल नॉट फाइट एट ऑल बिकॉज दे डू नॉट एक्सपेक्ट अ स्टूडेंट टू मे बी गेट इन टू दीज लिटिगेशन and all of that. So I was like, everything on that list is fraud. वो पहले से ही ख़राब थी, मैंने आपको बताया भी था. Here are the screenshots, ये मेल के screenshots हैं, ये WhatsApp chats के screenshots हैं and all of that, and I am not paying for any of it. So they sent me like another mail and I kept on chasing them. कुछ टाइम वो बीच में गायब हो जाते थे. Then they used to contact me. फिर मैं मेल करती थी, फिर वो गायब हो जाते थे, फिर वो मुझे contact करते थे. I was like, I am not agreeing to pay any of it. Then they sent me some of the points which I agreed to pay. तो उस point में क्या था that the property did not have any like hooks to maybe hang in your clothes. So basically I had ordered those stick on hooks from Amazon and मैंने वो paste करे थे on the wall so that I could hang my clothes जिससे मेरे clothes जल्दी सूख जाए and all of that. So that was one of the points that they had mentioned in that list. So उन्होंने कहा था that because of pasting those hooks वो wall वहाँ से थोड़ी ख़राब हो गई, so we'll be charging money for that. I was like, I was completely okay. I said please do charge for that because that is something that is my mistake or that I had to do for my convenience. I had no other option. So you can deduct money for that and all of that. But जो ये mattresses आप replace करना चाह रहे हो या फिर जो आप ये toilet seat repair करना चाह रहे हो या आप bulbs replace करना चाह रहे हो and basically आप paint करके अपने घर का एक जो white wash makeover करना चाहते हो ना, वो मैं अपने deposit की money पे तो नहीं होने दूंगी. Like I will take strict action against you guys. So बीच में कुछ ऐसा time आया when they stopped replying to mails. So मैंने क्या किया that I called to one of like there were many consultants who were calling. मतलब जब आप किसी प्रॉपर्टी में, जैसे जिस प्रॉपर्टी में इनफैक्ट मैं शिफ्ट करी थी, आई डोंट नो अगर कोई और एजेंसी होगी जो सिस्टमैटिक होगी तो वो आपको एक ही एजेंट देते होंगे, बट देयर वर सो मेनी एजेंट्स कॉन्टैक्टिंग मी फ्रॉम दैट एजेंसी ओनली. सो देयर वाज वन एजेंट हु हैड कॉन्टैक्टेड मी एक बारी पास्ट में. सो आई कॉल्ड हिम एंड ही हैड सेंट मी अ मेल saying something and I called him saying that nobody from your agency is replying to the mails. मतलब at least tell me what is the status, right? I would want to know the status and all of that. And he was like he was very rude when he talked to me on the phone and I was so pissed off by the way he was talking to me, and I immediately reverted back to him in that tone and I was like, please cut the phone, प्लीज़ चेक योर मेल्स एंड देन टॉक टू मी. आप मुझे कोई भी रबिश बातें मत बोलो. व्हेन यू नो दैट यू हैव चीटेड, यू नो योर एजेंसी हैज चीटेड, यू नो दैट योर पीपल हैव बीन गायब, they are not replying to mails, so you are at fault. Just apologize, cut the call and check your mails. Don't talk rubbish. बातें मेरे साथ आप मत करो बिकॉज लाइक आई हैव बीन बियरिंग ऑल दिस नॉनसेंस फॉर गुड 1.5 year and अब मैं नहीं बियर करूँगी. आई नीड माई डिपॉजिट मनी बैक. So I disconnected the call and all of that, and he told me that okay, now he sent me a mail saying that sorry for not being able to reply to the mail and here is again a breakdown and all of that. So उस breakdown में अपनी तरफ से इन्होंने क्या इन्वेंट्री रिपोर्ट बनाई थी. दे मेड एन इन्वेंट्री रिपोर्ट
एवरीथिंग वाज फ्रॉड. हाँ, आई एम टेलिंग एवरीथिंग वाज फ्रॉड. सो एक इन्होंने इन्वेंट्री रिपोर्ट बनाई थी जिसमें उन्होंने क्या किया कि डेट मेंशन कर दी ऑफ द डे दैट आई एंटर्ड द प्रॉपर्टी, एंड उसमें उन्होंने आगे खुद ही लिख दिया, मतलब खुद ही, दैट एवरीथिंग वाज इन द राइट कंडीशन. एंड देन दे गिव मी अनदर इन्वेंट्री रिपोर्ट. उसमें दे मेंशन द डेट जिस दिन मैंने चेकआउट किया, एंड उसमें दे अपने आप ही कि ये चीज़ें खराब थी. Now what happened was that they sent me this inventory report saying that once the day you entered the property, ऐसा ऐसा था. लुक, हैव अ लुक एट द इन्वेंट्री रिपोर्ट एंड यू कैन सी दैट जो हम थर्ड पार्टी चेक करवाते हैं उन्होंने देखो ये कहा है दैट हाँ ये सारी चीज़ें थी, एंड उन्होंने ही ये कहा है कि जिस दिन आपने प्रॉपर्टी लीव करी ये चीज़ें नहीं है या ये चीज़ें खराब हैं, जो भी मिसिंग हैं, जो भी. सो I was going through the inventory report, and the first page of the inventory report said that you have to have sign of the tenant and of the landlord or the landlady in which they approve कि जिस दिन हम enter करे थे प्रॉपर्टी में हमें ये सारी इन्वेंट्री मिली थी, and my signs were missing. The signs of the landlady were also missing, and I was like, this inventory report was never shown to me. मतलब मुझे ये इन्वेंट्री रिपोर्ट कभी दिखाई नहीं दी. हाउ विल आई नो कि क्या क्या चीज़ें मेंशन्ड है इन द अपार्टमेंट एंड क्या क्या चीज़ें फ्लैट में मेंशन है. ये तो इन्वेंट्री रिपोर्ट आपने आज खुद ही मेरे सामने आप ले आए हो, आपने मुझे तो नहीं दिखाई. अगर आप खुद सोचो कि अगर उसमें कॉलम बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि लैंड लेडी के भी साइंस होंगे एंड टेनेंट के भी साइन होंगे, एंड देन द इन्वेंट्री रिपोर्ट इज लाइक चेक्ड बाय बोथ द पार्टीज, लाइक बोथ द पार्टीज के वहाँ पे साइन होने चाहिए, तो मुझे तो वो इन्वेंट्री रिपोर्ट दिखाई नहीं गई. नो एजेंट फ्रॉम दैट एजेंसी केम अप टू मी एंड शोड मी, एंड उसने मुझे, किसी भी एजेंट ने मुझसे टैली नहीं करवाई इन्वेंट्री रिपोर्ट. किसी एजेंट ने मुझे आके नहीं बोला कि देखो ये 10 चीज़ें इस घर में है, वंस यू लीव द प्रॉपर्टी ये 10 चीज़ें ही घर में होनी चाहिए. आई वाज लाइक, ये इन्वेंट्री रिपोर्ट आपने एकदम कहाँ से बना लिया, बिकॉज मुझे तो नहीं दी गई थी, एंड इस इन्वेंट्री रिपोर्ट में मेरे साइन भी नहीं है, बिकॉज अगर होते तो आई वुड हैव नोन. आई एम अ वेल एजुकेटेड पर्सन, आई एम अ लॉयर बाय प्रोफेशन, सो आई नो कि मैं साइन ऐसे तो नहीं करूँगी. आई वुड नेवर साइन एनी डॉक्यूमेंट विदाउट रीडिंग इट. आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. एंड ये तो मैं ऑलरेडी, मेरे साथ इतना फ्रॉड चीटिंग हो चुकी थी दैट मैं तो ओवर कॉशियस होकर ही चल रही थी. सो मैंने कुछ ऐसा साइन नहीं किया. अब आपने एक इन्वेंट्री रिपोर्ट बना ली है एंड अब आप मेरे सामने वो ले आए हो, एंड आई नो एवरीथिंग ऑफ दिस इज फ्रॉड एंड दिस इज लाइक अ जोक टू मी, लाइक हु आर यू ट्राइंग टू फूल. एंड दे वर लाइक दैट नो दिस इन्वेंट्री रिपोर्ट हैज बीन चेक्ड बाय थर्ड पार्टी, एंड आई वाज लाइक हु इज दिस थर्ड पार्टी. आई डोंट नो दिस थर्ड पार्टी ऑल्सो. लाइक मुझे लूप में ही नहीं रखा जा रहा है एंड एवरीथिंग. सो आई वाज लाइक नो, I am not agreeing to this entire tricks जो आप मेरे साथ खेल रहे हो. I will not allow you to take away my money, to deduct my money for no fault of mine. Of course जो ये छोटे मोटे चीज़ें हैं जिसमें आप बोलो जैसे वो हुक्स लगे रह गए या अगर आपका कोई डोर साइड से चिप हो गया और दैट, आई एग्री टू दैट बिकॉज वो हो सकता है मुझसे हो गया होगा, एंड आई एम रेडी टू पे सम अमाउंट फ्रॉम दैट डिपॉजिट. बट यू आर प्लानिंग टू टेक एवरीथिंग अवे फ्रॉम मी एंड यू आर प्लानिंग टू गेट योर फ्लैट रिपेयर्ड एंड ऑल ऑफ दैट. एंड Then one day one of the agents called me, this agent only जिसने मुझसे बहुत बदतमीजी से बात करी थी, he only called me saying that the current tenant is not happy with the property. And I was like, so that is not on me, right? Even I wasn't happy with the property and nobody from the agency came up to me. उसका भी हाल वही होगा जो मेरा है, but no one came up to me, no one even listened to me. किसी ने मुझे कभी रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, like nobody ever actually said or clarified my issues. या कभी किसी ने मुझे आके नहीं बोला okay maybe you are facing this problem, you are like our tenant and we would like to resolve these issues, and कभी नहीं हुआ मेरे साथ. एंड आई वाज लाइक नाउ ऑल ऑफ अ सडन आपको अपने नए टेनेंट की बड़ी चिंता हो रही है एंड अब आप उस नए टेनेंट को पूरा फ्लैट वाइट वॉश और रेनोवेट करके देना चाहते हो ऑन माई डिपॉजिट मनी, एंड आई वोंट अलाउ दैट. सो they were like, okay, what we'll do is that we are stuck, like the landlady is stuck that no, she will deduct this money, and I was like, no, I will not allow you that. So जब usually ऐसे situation में क्या होता है कि जब stuck हो जाते हैं, like both the parties are not moving, so there's like a litigation that you enter into, or like a outside court settlement, like ADR, alternative dispute resolution. So basically उसमें क्या होता है कि आप outside the court मामला settle करते हो, like there's a mediator who sees दोनों parties के proofs and all of that, and I was like, I am up for it and I would like to file a case. And
the agency was like, of course you can go ahead with it, you can file the case, you can go for litigation, like you can go to the court, or you can opt for ADR, in which there's basically a mediator who would ask you for a set of proofs जिसमें आप अपनी WhatsApp conversation दोगे, mail दोगे and all of that, and the landlady would also give you give her side of the proof, whatever, and then the mediator will come to a particular conclusion and the case will be sorted and all of that. So I was like, okay, I would really want to go ahead with it. And then they shared that there's like a dispute redressal website. आप उस वेबसाइट पे जाओ and file your dispute, give in your evidence and all of that. And I was like, okay, I'll go for it. I did everything. मैं उस वेबसाइट पे गई. I told them that I had shifted to this property. The things were broken from day one. I had informed the landlady about it, the agency about it. I had all the proofs. So मैंने वो सारे attachments वो सब attach करे. I attached all the bills जो मैंने सारी नई चीज़ें खरीदी थी, of the mattress, of the bulbs and all of that, and I just filed the case. Of course this was one of एक वो cases जो मैं फाइल करी थी जिसमें I was very skeptical from inside because I wasn't very sure कि ये कितना like exactly I don't know what's happening behind the scenes, right? So I was very skeptical if I'll be able to retrieve back my money, मुझे पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा. What happened was I filed the case and उस case में the best part was that while I was filing it, उसमें जो main evidence की list थी जो हमें provide करनी होती थी, उसमें सबसे ऊपर एक point दिया हुआ था उस list में, which was inventory report signature. And in front of that I was like, मैंने उसके आगे स्क्रीनशॉट डाला एंड उसमें मैंने लिखा दैट इन्वेंट्री रिपोर्ट वाजंट गिवन टू मी, आई डिड नॉट साइन इट, आई डिड नॉट सी इट फॉर दैट मैटर. मुझे पता ही नहीं था इन्वेंट्री रिपोर्ट जैसा भी कुछ होता है, मतलब आई डिड नॉट नो कि ऐसा भी कोई डॉक्यूमेंट होता है. एंड ऑल ऑफ अ सडन वन डे वंस आई लीव द प्रॉपर्टी दे आर विलिंग टू टेक इन माई डिपॉजिट ऑल ऑफ दैट, एंड ये प्रकट हो गए मेरे सामने, बोल रहे हैं कि इन्वेंट्री रिपोर्ट तो आपने मतलब इन्वेंट्री रिपोर्ट से मैच नहीं कर रही है जो कंडीशन अब है प्रॉपर्टी की. एंड आई वाज लाइक माई सिग्नेचर्स were missing and all of that. And once I saw that list of evidence जो वो मांग रहे थे, I somehow was a little confident because I was like कि मेरे साइन नहीं है, so maybe that is the point that will go in my favor because मैंने वो चीज़ें कभी देखी नहीं है. So ये हुआ and I filed the dispute, I filed the case and I was like okay, I'll wait for a good amount of time. तो इन्होंने मुझे क्या बोला एजेंसी वालों ने, that sometimes जो ये केस होता है they go on for 6 months. मिनिमम 3 to 6 months लगते हैं केस सॉल्व होने में. एंड आई वाज लाइक ओके, आई एम ओके विद इट. आप 1 साल लगाओ बट यू कांट ड्यूप मी लाइक दैट. सो मैंने केस फाइल करा. आई यूज टू गेट कॉन्स्टेंट मेल सेइंग दैट योर केस इज बीइंग टेकन केयर ऑफ, हम देख रहे हैं ऑल ऑफ दैट. एंड वन डे I got a mail saying that your deposit money is being returned to you. This is the amount which is being returned to you. Of course, some will be deducted जो आपने वो hooks वगैरह के लिए एग्री करा या जो थोड़ा बहुत इधर चिप हुआ या कुछ इधर उधर चीज़ें आपने एग्री करी हैं, only that amount is being deducted. The rest amount, जितना बाकी का amount है, the entire amount is being given back to you because you have won it. And I was like, I was like, thank God I fought the case. Thank God I was brave enough to, go against the agency, to go against the landlady, to, maybe file this ADR, outside court settlement case and all of that outside. Like this was more like an international case. So I was like, thank God I did that because I got my money back. And अब फाइनली मेरे अकाउंट में वो पैसा आ गया है. आई एम डन विद द लैंडलेडी, आई एम डन विद द एजेंसी, आई एम डन विद दैट एंटायर इवेंट्स एंड सीरीज जो मेरे साथ हुआ इन विच आई वाज चीटेड एंड ड्यूप्ड और ऑलमोस्ट चीटेड आई वुड से. सो पूरे इंसिडेंट से पता है मैंने सिर्फ एक बात सीखी. फॉर एनीबडी हु इज़ गोइंग आउट देयर, जो पढ़ने जा रहा है, जो जॉब के लिए जा रहा है, और इवन इफ़ यू आर गोइंग जस्ट एज अ टूरिस्ट, अगर आप कोई अकोमोडेशन बुक कर रहे हो, प्लीज़ हैव अ लुक एट द इन्वेंट्री रिपोर्ट. ये चीज़ एक ऐसी चीज़ है जो आई थिंक मोस्टली लोगों को नहीं पता होती है. मुझे भी नहीं पता थी बिकॉज दिस वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस. Please ask your landlady, landlord, the agency, the letting agency, जो भी involved है, like whoever is the mediator, to please give you the inventory report, और please ask them to get everything checked. आप उनको बोलो कि आपका कोई एक एजेंट आएगा, मुझसे सारी चीज़ें चेक करवाएगा. I will approve of them. Take everything in writing. आप कुछ भी वर्बल बिलीव मत करो. सेंड देम ऑन अ मेल, मे बी जस्ट व्हाट्सएप देम. मेल इज़ एनी डे बेटर बिकॉज वो ज़्यादा रिलायबल माना जाता है.
प्लीज़ 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 बी वेरी केयरफुल व्हेन एवर यूर एंटरिंग अ प्रॉपर्टी, बिकॉज बाद में वो एक ऐसी रिपोर्ट बना देते हैं एंड यू आर नॉट इवन अवेयर कि ऐसी कोई रिपोर्ट एग्जिस्ट भी करती है एट द फर्स्ट प्लेस, एंड देन योर मनी इज गॉन. बिकॉज अगर मैंने ये डिस्प्यूट रेज नहीं करा होता है, मैंने अपना एक गुड सेट ऑफ एविडेंस उनको नहीं प्रोवाइड करे होते, मैंने सारा रिकॉर्ड नहीं रखा होता, आई वुड हैव लॉस्ट दैट entire amount of the deposit money, and that amount was not a very meager amount. That was like a huge amount that I had paid. And please always check the inventory report. अगर आप उनमें से कोई हो जिनसे ये कभी गलती हो गई है, like maybe you haven't checked the inventory report and of course अब आप पास्ट में जाके वो बदल नहीं सकते, प्लीज़ गो फॉर लाइक अ लिटिगेशन, गो फॉर एन आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट. आप अपना सारा एविडेंस दो, सारा प्रूफ दो, प्रूफ दैट यू आर बीइंग चीटेड एंड ड्यूप्ड एंड आपकी गलती नहीं है, आपको शुरू से ही अकोमोडेशन इस कंडीशन में मिली गई थी, आपने एग्जैक्टली सेम कंडीशन में ये छोड़ी है. दे आर जस्ट ट्राइंग टू टेक अवे द मनी फ्रॉम यू टू मे बी गेट देयर फ्लैट और अपार्टमेंट रेनोवेटेड. लाइक दिस इज लाइक अ कॉमन स्कैम आई थिंक. मतलब मेरे साथ अकोमोडेशन से रिलेटेड एवरी पॉसिबल स्कैम आई थिंक हो गया विद इन दैट पीरियड ऑफ 1.5 year 2 years. एंड मैंने उससे सिर्फ एक चीज़ सीखी है दैट वेन एवर इन द फ्यूचर आई थिंक जब भी मैं कोई ऐसा अपार्टमेंट बुक कराऊंगी, आई विल ऑलवेज चेक द इन्वेंट्री रिपोर्ट. लकीली इस बारी की तरह ही आई विल कीप एवरी एविडेंस पॉसिबल विद मी ऑन माई मेल, ऑन माई चैट. मैं सारे स्क्रीन शॉट सब कुछ अपने पास रखूंगी. एंड द लास्ट पार्ट इज दैट आई विल बी वेरी वोकल अबाउट इट. सो प्लीज़ 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 बी वेरी अवेयर. ऐसे फ्रॉड्स होते हैं, ऐसी चीटिंग होती है जब ऑल ऑफ अ सडन दे विल कम अप विद लाइक अ रिपोर्ट जो आपको लगेगा ये रिपोर्ट भी थी, ऐसा भी कुछ होता है, ऐसा भी कोई डॉक्यूमेंट होता है जो आपको चेक करना चाहिए था. इट्स नॉट योर फॉल्ट. दैट इज लाइक अ डॉक्यूमेंट दैट दे नो अबाउट एंड वो आपको नहीं बताया, बिकॉज देन मे बी दे कैन यूज इट इन द फ्यूचर एंड मे बी टेक अवे सम मनी फ्रॉम यू. सो प्लीज़ बी वेरी अवेयर. ऐसे फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा होते हैं. सो प्लीज़ बी वेरी 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 अवेयर. आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल. लकीली आई वॉज एबल टू रिट्रीव बैक माई मनी. मुझे अपना पैसा मिल गया because I went into that process of filing a case, of I waited for a good 3-4 months. जब मतलब I came back in the month of Feb and now like very recently I have got my deposit money back. I waited for like a good 4 months and I had to wait. I was okay with waiting. I just did not want to get cheated again. मुझे था कि अब और कितना लूटोगे यार. So that is that. So I hope you found this video useful. अगर आप में से कोई भी हो जो फ्यूचर में कभी भी अकोमोडेशन बुक करता है, so please have a look at my first video जो मैंने part 1 बनाया था. I'll link it in the description down below. You will get a very fair idea of आपको कैसे अकोमोडेशन ढूंढनी चाहिए, आपको किस पे ट्रस्ट करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए, and पोस्ट यू लीव द अकोमोडेशन एंड तब आपके साथ क्या क्या फ्रॉड हो सकता है उसके लिए आप ये वीडियो देख ही रहे हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू फाउंड इट हेल्पफुल. प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस. आई सी यू गाइस सुपर सून इन माय अपकमिंग वीडियोस. प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब. प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो अगर आपका भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है इन द पास्ट, सो दैट इफ पीपल रीड द कमेंट्स दे विल बी एबल टू लर्न फ्रॉम हमारी गलतियाँ. बेसिकली आई मेड दिस वीडियो जस्ट टू टेल द पीपल कि ऐसा फ्रॉड हो रहा है एंड टू जस्ट मेक द पीपल अवेयर कि आप प्लीज़ ऐसे फ्रॉड में मत फंसो जिसमें मैं फंसी. एंड आई रियली होप कि आप अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो अगर आप उस फ्रॉड में फंसने वाले हो तो आप उससे बच जाओ. आप थोड़े से विजिलेंट एंड थोड़े से ओवर कॉशियस होके चलो, बिकॉज at the end of the day it's your money which is involved. उनका कुछ नहीं जा रहा. So that was it for the video. I'll see you guys super soon in my upcoming videos. Till then please take care of yourselves. Bye bye. Love you.